हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के आंसर्स किस तरह से लिखना चाहिए और किस तरह से लिखने से मार्क्स मिलेंगे, तो इस विषय पर आज वीडियो बना रहा हूँ। यह वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। जो स्टूडेंट एग्ज़ाम 2 लिखने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, उन सारे हिंदी स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। स्टूडेंट्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर लिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज आपको दिखाऊंगा कि करेक्ट आंसर किस तरह से लिख सकते हैं या लिखना चाहिए। तो वीडियो को स्किप मत करिए, अंत तक आप देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हो सके तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब हम इवैल्यूएशन करने के लिए चले जाते हैं तो वहाँ पर एक स्कीम ऑफ वैल्यूएशन के हाथ दे देते हैं। उस स्कीम के अनुसार हमें इवैल्यूएशन करना होता है या मूल्यांकन करना होता है और देखकर हमें मार्क्स देना पड़ता है। तो वो आंसर्स कैसे होता है, उन आंसर्स को आज दिखाऊंगा और उसी के अनुसार अगर आप एग्जाम में यानी एग्जाम 2 में अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिल जाते हैं। स्टूडेंट्स, ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸಬರಿದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ। ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ। 3 ಮಾರ್ಕ್ಸು, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸು, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮೂಲ್ಯಾಂಕನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವಲ್ಲ, ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ। ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೀವು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ। ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದರಲ್ಲಿ ಡೌಟು ಇಲ್ಲ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ಸು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಟುಡೇ I am talking about only 3 marks, 4 marks and 5 marks answers. How to write these answers? So many students they know when we write long answers we will get more marks. ऐसे सोच लेते हैं और कुछ स्टूडेंट्स सोच लेते हैं so we write short answers so we can get marks sir. So कई प्रश्न क्या पूछने लगते हैं, तो इसीलिए किस तरह से लिखना चाहिए, हाउ टू राइट करेक्ट आंसर्स, टुडे आई शो in this video. So once you see these answers, automatically you will get to idea how will get more marks or how can we write answers. अगर ये आपके माइंड में अगर आ जाता है तो आप सेकेंड एग्जाम में निश्चित रूप से पास हो जाते हैं। ಈ ಥರ ನೀವು ಐಡಿಯಾ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರ। ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆನ್ಸರು ಬರೆಯೋದು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ। ಈ ಲೆಸನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ। I show you scheme of valuation and I hope you will get to idea. So बने स्टूडेंट्स, ಇವತ್ತು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ। आइए स्टूडेंट्स, आज आपको आंसर्स दिखाऊंगा किस तरह से आपको एग्जाम में आंसर्स लिखना है। ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ 1 ಮಾರ್ಚ್ 2025 ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಜಸ್ಟ್ ಯು ವಾಚ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಇದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ सामाजिक समस्याएं कौन कौन सी है वो प्रश्न है। सो इसमें गंगा मैया से साक्षात्कार, इस पार्ट में कौन कौन सी समस्याओं को लेकर दिखाते उन समस्याओं पर प्रश्न है। सो आंसर किस तरह से लिखना चाहिए, देखिए
ಇದು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. गंगा मैया से साक्षात्कार पाठ के लेखक डॉक्टर बरसानेलाल चतुर्वेदी. ಅಂದರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರೈಟರ್ ನೇಮ್ ಬರೆಯೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಯು ಶುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ರೈಟರ್ ನೇಮ್ ಬಿಫೋರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಅದು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. इसमें लेखक ने समाज में फैली हुई विविध समस्याएं जैसी समाज में प्रदूषण, चरित्र का संकट, सेवा के नाम पर मेवा खाना, धर्म का व्यापारीकरण, महंगाई, रिश्वतखोरी और पाशविकता बढ़ती चली जा रही है. सभी वैभव और मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं. पशु पक्षियां मनुष्यों के इन कुकर्मों पर हंस रहे हैं. इस प्रकार लेखक ने सामाजिक विविध समस्याओं पर प्रकाश डाला. यानी लेखक सामाजिक समस्याओं पर कौन कौन सी समस्याओं पर प्रकाश डाला, ये क्वेश्चन है और ये आंसर लिखना चाहिए. सो ये आंसर अगर आप लिखेंगे तो आपको 3 मार्क्स क्या मिलता है. सो दिस इज करेक्ट आंसर. सो ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸು ಬರೀಬೇಕು. ದೆನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಂದರ್ಭ, ಹೌ ಟು ರೈಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. 21 ಕ್ವಶನ್. ಸಂದರ್ಭ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಂದರ್ಭ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೆಸನ್ನು ನೇಮ್ ಬರಿಬೇಕು, ರೈಟರ್ ನೇಮ್ ಬರಿಬೇಕು. ಪಾಠ का नाम सुजान भगत, लेखक प्रेमचंद. ಇದು ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ಸಂದರ್ಭ ನೋಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಂತ संदर्भ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು लेखक ने सुजान के व्यक्तित्व का वर्णन करते समय कहा है. स्पष्टीकरण ಇದು ಬರಿಬೇಕು. सुजान के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई थी. वहाँ बहुत दिनों से घर का स्वामी था. अभी भी ऐसा ही समझता रहा, लेकिन स्थिति में कितना उलटफेर हो गया था इसके उसे खबर नहीं थी. बेटे उसका सम्मान करते थे, यहाँ बात उसे भ्रम में डाले हुई थी. लड़के उसके सामने इसकी उसे खबर ना थी. बेटे उसका सम्मान करते थे, वो कंप्लीट हुआ. लड़के उसके सामने चिलम नहीं पीते, खाट पर नहीं बैठते, यहाँ केवल श्रद्धा थी, उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं. वहाँ इस घर पर अपने होते हुए भी दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता. इस संदर्भ में लेखक ने उपयुक्त वाक्य का प्रयोग किया है. तो इस तरह से 3 मार्क्स के संदर्भ लिखना चाहिए. ಸೊ ನಾನು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕಂತ ತೋರಿಸಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕಂತ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇವಾಗ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರು, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ. सूखी डाली ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಶೋಧ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ सूखी डाली ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಶೋಧ. सूखी डाली ಆನ್ಸರ್ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ನೋಡಿ. सूखी डाली एकांकी के लेखक उपेंद्र नाथ तश्क है. इसमें सम्मिलित परिवार का चित्रण है. यहाँ सम्मिलित परिवार एक विशाल वट वृक्ष की हरी भरी डाली के समान है. इसमें मूलराज के परिवार का वर्णन है. मूलराज के परिवार के मुखिया दादाजी हैं. इनकी उम्र 72 वर्ष है. इनका बड़ा बेटा सन 1914 ईस्वी के प्रथम महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते काम आया था. उनके 2 बेटे और पोते जमीन, फार्म, डेयरी और चीनी के कारखाने की देखभाल करते हैं. छोटा पोता परेश अभी नायब तहसीलदार होकर इसी कस्बे में आया है. परेश की पत्नी का नाम है बेला है. इंदु और बेला दोनों सुशिक्षित है. बड़ी भाभी मंजली भाभी छोटी भाभी है. बड़ी बहू मंजली बहू और छोटी बहू है. करमचंद इनका दूसरा बेटा है. बेला छोटी भाभी की बहू है. भाशी, मल्लू, पारो घर के अन्य सदस्य हैं. मूलराज का परिवार एक विशाल वट वृक्ष के समान है. सो मूलराज के परिवार के बारे में वर्णन करना है या परिवार का चित्रण कीजिए, तो ये आंसर आपको लिखना है. सो ये 5 मार्क्स के लिए आंसर है. देन प्रतिशोध 4 मार्क्स के लिए. आई शो यू 4 मार्क्स आंसर्स. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 4 मार्क्स. प्रतिशोध एकांकी के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं. महाकवि भारवी इस एकांकी का नायक है. वहाँ संस्कृत के महापंडित श्रीधर के बेटे हैं.
माँ का नाम सुशीला है, वहाँ संस्कृत के महाकवि है। भारवी ने इन विद्वानों और पंडितों को शासक में परास्त किया है। वहाँ इस कीर्ति से इतना प्रभावित हो जाता है कि वहाँ घमंडी और अहंकारी बन जाता है। वहाँ बहुत ही गर्म मिजाज का व्यक्तित्व है। वहाँ अपने अपमानों का बदला लेना चाहता है, पिता की हत्या करने के लिए भी तैयार हो जाता है। उसी समय उसे गलती का एहसास भी होता है, उसे अपनी करनी पर पछतावा होने लगता है। वहाँ पाप का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह वहाँ सचमुच विनम्रता और प्रदर्शन करता है। भारवी अपना दंड स्वीकार कर यहाँ साबित करता है कि वह एक महान विद्वान है, साथ ही साथ एक अच्छा इंसान भी है। वहाँ कीर्तार्जुनीयम महाकाव्य की रचना कर महाकवि भारवी बन जाता है। ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಹಿಂದ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.